My name is Loken Singh. You are watching me on Sharp English Academy YouTube channel. Today we are talking about the grammar family. First of all, we come to know the term means what. यहाँ पर दो words लिखे हुए हैं, grammar and family. We come to know the meaning of grammar. So we need to know the definition of grammar. ग्रामर की एक सिंपल लिमिट डेफिनेशन में हम कह सकते हैं ग्रामर इज एन आर्ट ऑफ मेकिंग सेंटेंस. ग्रामर इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग सेंटेंस, और वी कैन से ग्रामर इज अ साइंस which gives us informations about different parts of speech to put them together. Grammar teaches us how to make sentence, how to speak sentence, and here we talk about family. So family means when there are so many members living together, they have a mutual relationship with each other, so they have blood relation with each other, so we call it family. So grammar also has a family. We cannot make any sentence, we cannot speak any sentence, we cannot write any sentence without these 9 parts of speech. As we know that a human being also has its parts. We cannot say single hand that is a man. We cannot say to our nose it is a man. We cannot say to our leg it is a man. We cannot say to our head that is a man. But when the all body parts come together, join together, then all the body parts work together, then it becomes a complete man. Same in grammar language, grammar English, we can say the single word is not a grammar, the single word is not a sentence, but when some words come together and make a particular sentence, we call it as a sentence. Sentence always takes the help of these all parts of speech in a proper way. What word should come first, what should follow it, and what should follow that one, and what should follow that one. Then it becomes a sentence. Sentence is that which gives us some informations, knowledge about something or someone, or something is happening. It is a medium of communication. Sentence passes our informations, knowledge to other people. They get the information and they also reverse the sentence and pass the message again to us. Then we communicate with each other in any language, whichever is a native language, or we talk about the another language which we are learning. But जब इंग्लिश लैंग्वेज की बात आती है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से हम अपनी इंग्लिश की क्लासेस को स्टार्ट कर सकते हैं. इसको समझने के बाद में हम अगले चैप्टर्स को आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं. क्योंकि जब भी हम डायरेक्ट अगर आपको कोई टेंस पढ़ाएं या आपको मॉडल्स पढ़ाएं या आपको कोई भी कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाएं तो वहां पर प्रॉब्लम यही आएगी कि इसमें ये वर्ब क्या होती है, ये इंटरजेक्शन क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब का काम क्या है, इसमें कैसे पहचान करें कि ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट सेकंड आएगी, थर्ड आएगी, एस आएगी. तो इन सबको समझने के लिए हमें ग्रामर के पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ना होगा. तो इस ग्रामर फैमिली को हमने जैसे फैमिली मेंबर्स के जो एक रोल होते हैं लाइक फादर, मदर, ऐसे इस ग्रामर फैमिली को हमने रोल दे दिया है. सो एज वी ऑल नो, ये तो हम सब जानते ही हैं कि देयर आर 9 मेंबर्स इन ग्रामर फैमिली, राइट. अब हम बात करते हैं कि सबसे पहला जो पार्ट ऑफ फैमिली है, ग्रामर फैमिली का जो पार्ट है, इट इज नाउन. नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं और हम सभी ने ये बचपन से पढ़ा है. इसकी एक सिंगल सी डेफिनेशन सब लोग जानते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग. अब इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि नाउन इज एवरीथिंग व्हाट वी कैन सी, व्हाट वी कैन टच एंड व्हाट वी कैन फील. जो भी चीज हम देख सकते हैं, जो भी हम छू सकते हैं और जो भी हम फील कर सकते हैं, वो सब नाउन होता है. सेकेंड, वी कैन से नाउन्स आर 2 टाइप, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड टेंजिबल नाउन. टेंजिबल मतलब जिसे छुआ जा सकता है, जिसे देखा जा सकता है. एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, मींस लाइक ए फीलिंग. सो नाउन दुनिया में हर वो चीज है जिसका नाम है, वो नाउन है. अगर दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसका नाम ना हो. कितनी सारी चीजें जिनका हम नाम नहीं जानते लेकिन कुछ ना कुछ उनका नाम है, तो इसका मतलब वो सब नाउन है. अब इसमें नाउन की बात करते हैं तो यहाँ पर स्पोकन इंग्लिश में हम कह सकते हैं कि नाउन 2 प्रकार के हो सकते हैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल. टेंजिबल में वो नाउन आएगा जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, कोई भी इक्विपमेंट, कोई भी डिवाइस, कोई भी ह्यूमन बीइंग, कोई भी ट्री, क्लाउड, ठीक है, या फिर ग्राउंड, ग्रास, बुक्स, टेबल, फर्नीचर, बोर्ड, मार्कर, हैंड, ह्यूमन बॉडी, क्लॉथ्स, ये सब नाउन है. इन सब के नाम है.
सेकेंड इंटेंजिबल नाउन, जिसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, लेकिन नाम तो उसका भी है, लेकिन सिर्फ उसको महसूस किया जा सकता है, उसे ना देखा जा सकता है ना छुआ जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल पेन, दर्द, ठीक है, इसको आप छू नहीं सकते, यू कैन ओनली फील। एपिटाइट, भूख, ठीक है। स्लीपी, नींद। आइडिया, विचार। थॉट, विचार। इंफॉर्मेशन, सूचना, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन सुनाई जा सकती है। साउंड, आवाज कान में आ रही है, कान को महसूस होगी। टेस्ट, ये सब भी नाउन है, इनको इंटेंजिबल नाउन कहा जाएगा। इस नाउन का हमने यहां पर फैमिली में रोल डिसाइड कर दिया है, इट इज ए फादर, ठीक है। वी कॉल इट फादर इन ग्रामर फैमिली, like we all have a father in our family, so noun is the father of grammar family, and we know father is that person in our family who takes all the decisions, who take all the risk, and who communicate with all family members in our family. Same, the noun is working here, noun is known as father, so father से हम इसको noun को relate कर सकते हैं। अब इसका रोल क्या होता है, नाउन हैज टू रोल इन ए सेंटेंस। अब इसका रोल तो सेंटेंस में ही आएगा, चाहे लिख करके आए या बोल करके आए, नाउन का काम सेंटेंस में ही आएगा। तो इसका काम क्या है, इसके फंक्शंस दो हैं। इसके फंक्शंस दो हैं कि या तो ये वाक्य की स्टार्टिंग में आएगा तो दैट विल बिकम सब्जेक्ट, और या ये वाक्य के अंत में आएगा सो इट विल बिकम एन ऑब्जेक्ट। इट कम्स इन द बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस और इट कम्स इन द लास्ट ऑफ ए सेंटेंस, सो इट बिकम्स इट कंप्लीट्स द सेंटेंस। वैसे भी हम जानते हैं कि एक सेंटेंस का जब हम स्ट्रक्चर लेते हैं तो कॉमन से स्ट्रक्चर हम सभी को पता है, कर्ता, क्रिया, कर्म। तो कर्ता जो है वो भी क्या नाम है, नाउन का पार्ट है, और जो कर्म है वो भी नाउन का पार्ट है। तो दोनों जो सेंटेंस का बिगिनिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, ये दोनों नाउन के ही पार्ट होते हैं, नाउन का ही काम होता है। नाउन, जैसे हमने कहा राम, तो राम से सेंटेंस स्टार्ट किया। हमने कहा मोहन, तो मोहन से स्टार्ट किया। नाउन जो है वो कोई भी प्रोफेशन हो सकता है, पर्सन हो सकता है, रिलेशन हो सकता है, कोई भी वस्तु हो सकती है, एनिमल हो सकता है, थिंग्स हो सकती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हो सकती हैं, ये सब नाउन है। ये वाक्य शुरू में अगर आ जाती है तो सब्जेक्ट का काम कर रही है, और यही चीज वाक्य अंत में जाती है तो ऑब्जेक्ट का काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, मोहन इज कमिंग टू एकेडमी। अब मोहन स्टार्टिंग में आ रहा है तो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और अकेडमी वर्ड जो एक फिजिकल प्लेस है वो लास्ट में आ रहा है तो वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर मोहन भी नाउन है और एकेडमी भी नाउन है। सेकेंड, नाउ वी टॉक अबाउट वर्ब। तो जब ये फादर है तो सीधी सी बात है, हमारे माइंड में रिफ्लेक्ट हो रहा है कि ये मदर है, ठीक है, क्योंकि फैमिली तो यहीं से स्टार्ट होती है ना। सो वी टॉक अबाउट कि नाउन प्लेज द रोल ऑफ फादर इन ग्रामर फैमिली एंड वर्ब प्लेज द रोल ऑफ मदर इन ए ग्रामर फैमिली। एंड वी नो दैट कि अवर मदर, और वी कैन से हिज वाइफ, always follows, she always follows her husband. We can say my mother always follows to my father. We can say verb is that thing which always comes according to noun. ये कहती है वर्ब की मुझे हमेशा इसको अपने हस्बैंड को फॉलो करना है, और जैसा ये होगा वैसा ही मेरा रूप होगा। तो वी कैन से कि वर्ब हमें सिंगुलर लगाना है कि प्लूरल लगाना है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। वर्ब हमको प्रेजेंट की लगानी है कि पास्ट की लगानी है कि फ्यूचर की लगानी है, ये भी इस बात पर डिपेंड करता है कि इसमें जो सब्जेक्ट है यानी जो नाउन का पार्ट है वो प्रेजेंट में एक्शन ले रहा है, पास्ट में एक्शन ले रहा है या फ्यूचर में एक्शन ले रहा है। तो दैट वर्ब ऑलवेज कम्स अकॉर्डिंग टू नाउन, ठीक है। अब ये जो वर्ब है इसको भी जनरली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला वी कॉल इट हेल्पिंग वर्ब एंड सेकंड वी कॉल इट मेन वर्ब। और 90% मैं ये कह सकता हूं कि स्पोकन इंग्लिश में सबसे बड़ा रोल इसका है। गलतियां सबसे ज्यादा इसकी होती हैं। व्यक्ति को इंग्लिश बोलने में जितनी भी आप गलतियां करते हैं उसमें सबसे ज्यादा ब्लेंडर मिस्टेक्स जो होती हैं वो हेल्पिंग वर्ब को लेकर या मेन वर्ब को लेकर के होती हैं। दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश और फ्लॉलेस इंग्लिश। व्हाई? बिकॉज हमें ये नहीं पता होता है कि ये हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, प्रेजेंट में क्या आएगा, पास्ट में क्या आएगा। जैसे सो मेनी स्टूडेंट्स दे ऑलवेज यूज इज एम आर इन प्रेजेंट इंडेफिनिट, सो दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। समटाइम पीपल यूज कुड इन प्रेजेंट, it happens, but sometimes it is wrong. Sometimes we use first form in past indefinite, so we know it is wrong.
तो दोनों का ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब जैसे यहां पर ये सहायक क्रिया यानी जो सब्जेक्ट की सहायता करती है, और ये है मुख्य क्रिया यानी कि जो सब्जेक्ट के एक्शन को बताती है। तो सहायक क्रिया तो वो है जो सब्जेक्ट के जस्ट इमीडिएट आती है, लाइक इज एम आर, वाज वर, डू डज डिड। ये सहायक क्रिया भी दो प्रकार की होती हैं, एक होती है ऑक्सिलरी वर्ब और एक होती है मॉडल वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत तो आते हैं बी की फॉर्म, हैव की फॉर्म और डू की फॉर्म। डू की फॉर्म में आता है डू डज डिड, बी की फॉर्म में आता है इज एम आर, वाज वर, बीन और बीन। हैव की फॉर्म में आता है हैज, हैव और हैड। इसके अलावा जो सब्जेक्ट के बाद हम दूसरे केस में यूज करते हैं मॉडल्स में, तो उसके अंतर्गत आते हैं हमारे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वोट, नीड, ऑट टू, मस्ट और डेयर। आगे हम इन दोनों के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, बट अभी हमारा फोकस सिर्फ ग्रामर फैमिली को अंडरस्टैंड करने का, तो आपको सिर्फ यहां तक समझना है। इट इज ए हेल्पिंग वर्ब मींस असिस्टेंट, असिस्टेंट ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार। एंड इट इज ए मेन वर्ब, इट इज एन एक्शन ऑफ सब्जेक्ट। ये सारी वो क्रियाएं होती हैं जिनमें हिंदी में ना वर्ड लग जाता है, किसी एक्शन को रिफ्लेक्ट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल दौड़ना, लिखना, सीखना, चलना, बैठना, बातें करना, आना, फांसी देना, काम करना, साइकिल चलाना, तैरना, बात करना, बैठना, हंसना, ये सारे एक्शंस हैं। अब ये एक्शन या तो हमने पास्ट में लिए या हम प्रेजेंट में लेते हैं, डेली लेते हैं, डेली कुछ ना कुछ एक्शन करते हैं। सुबह जगने से लेकर रात तक सोने तक हम एक्शन ही एक्शन करते हैं, और या फिर हम आगे का प्लानिंग करते हैं कि फ्यूचर में ये एक्शन लेंगे। तो ये जो मेन वर्ब होती है, इसके अगर हम फॉर्म यानी कि रूप की बात करें तो इसके फॉर्म 5 होते हैं, जिनको हम V1, V2, V3, V4 और V5 के नाम से जानते हैं। V1 यानी कि प्लूरल वर्ब होती है। V1 हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगी, सभी जानते हैं। जैसे आई के साथ में आपने कहा आई गो टू स्कूल, आई यहां पर प्लूरल नहीं है लेकिन फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन के साथ भी आती है, वी के साथ भी आएगी, वी गो टू स्कूल। और V2 जो है, जैसे गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट, तो वेंट हमेशा जो है पास्ट में आएगी, और वो कॉमन सभी सब्जेक्ट के साथ आएगी, सिंगुलर के साथ भी, प्लूरल के साथ भी। V3 का प्रयोग हम कई रूप में करते हैं। V3 का जो यूज है वो परफेक्ट टेंस में होता है, पैसिव वॉइस में होता है, और कई बार उसका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में भी होता है। ठीक है। फोर्थ फॉर्म जिसको आईएनजी फॉर्म कहा गया है, वो प्रोग्रेस को दिखाता है, कंटिन्यू को, वो भी सभी सब्जेक्ट के साथ आती है। लेकिन जब वो फोर्थ फॉर्म आएगी तो उसके साथ में हमको सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके हिसाब से सहायक क्रिया का चयन करना पड़ेगा। इज एम आर का, वाज वर का, विल बी का, शैल बी का, इनके हिसाब से हम वो क्रिया लगाएंगे। अब फोर्थ फॉर्म जो है वो भी दो काम करती है, या तो प्रोग्रेस किसी काम को दिखा रहा है, जैसे मैं ग्रामर फैमिली पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग यू ग्रामर फैमिली, तुम सभी लोग इंग्लिश सीख रहे हैं, यू ऑल पीपल आर लर्निंग इंग्लिश। अब देखो यहां मैंने तुम के साथ में आर लगाया, आई के साथ में एम लगाया, तो ये दोनों क्या है, हेल्पिंग वर्ब, तो ये सब्जेक्ट के अनुसार आई। लेकिन हमने पीछे जो है दोनों केस में आईएनजी लगाई, आई के साथ भी लगाई और तुम के साथ भी लगाई, लर्निंग इंग्लिश, टीचिंग इंग्लिश। तो ये आईएनजी फॉर्म जो होती है, पहला काम तो प्रोग्रेस को करती है, यानी कोई काम कंटिन्यू हो रहा है। दूसरा इसका काम होता है जेरंड, जो वाक्य इसी से शुरू होता है, जैसे स्मोकिंग इज ए बैड हैबिट। अब ये कंटिन्यू नहीं कर रहा है, अब ये नाउन का काम कर रहा है। क्योंकि नाउन का काम कैसे कर रहा है, ये कैसे पता चला, क्योंकि स्मोकिंग के बाद में इज लग रहा है, हेल्पिंग वर्ब लग रही है, और हेल्पिंग वर्ब हमेशा कहां आती है, सब्जेक्ट के बाद। और सब्जेक्ट किसका पार्ट है, नाउन का पार्ट। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर जो है स्मोकिंग इज ए गुड बैड हैबिट, ये यहाँ पर नाउन का काम कर रहे हैं। इन सब चीजों को डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। और जो लास्ट वाली फॉर्म होती है V5, गो की V5 बनेगी गोज। अब जैसे गोल लगा दिया तो इसका मतलब ये है कि ये सिंगुलर वर्ब है, क्योंकि ईएस सभी जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है। बाकी एस या ईएस फॉर्म का प्रयोग हम ग्रामर में और किसी सेंटेंस में नहीं करते। अब मैं यहां पर आई के साथ गोज नहीं लगाऊंगा। अब जैसे मैंने बोल दिया माई सन गोज टू स्कूल डेली, तो अब यहां पर हमने गोज लगाया। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि ईएस आपको जब लगाना है जब वाइक हमारा प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है और वाइक अफर्मेटिव है। V1 हमारे प्लूरल फॉर्म में, ये प्रेजेंट के इंडेफिनिट में भी आएगा।
ये फ्यूचर में भी आएगा, ये सभी मॉडल्स में आएगा। V2 सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव में आएगा और सेकंड फॉर्म के रूप में आएगा, सभी सब्जेक्ट के साथ में आएगा। V3 के साथ में हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। वो ऐसा नहीं है कि सिंगुलर के साथ आएगा तो सभी क्रियाओं के साथ में, सभी सब्जेक्ट के साथ, लेकिन हमें ये देखना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ में हैज लगेगा, हैव लगेगा, ठीक है। पैसिव है तो एज एम आर प्लस वी वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगती है, वो सब आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो दोनों के रोल अलग अलग हैं, लेकिन दोनों पार्ट किसका है, वर्ब का। और वर्ब किसको फॉलो करता है, नाउन को। और नाउन के रोल क्या है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो ये दोनों एक फैमिली के कपल हैं, सो दे आर लिविंग टुगेदर एंड दे आर नोन एज द हैप्पी कपल। तो कर्ता क्रिया, कर्ता के साथ में वर्ड अपने आप ही जुड़ा होता है, कर्ता क्रिया। जैसे हमारे अगर हम अपने रिलीजन की बात करें तो हमने कहा राम सीता, ठीक है, सीता राम, तो दोनों ज्वाइंट में जुड़े हुए हैं। विष्णु भगवान लक्ष्मी, शिव शंकर पार्वती। तो एक तरीका से मतलब दोनों साथ में जुड़े हुए हैं, एक भी इसमें अकेला सेंटेंस नहीं बना सकता और ना वर्ब सेंटेंस बना सकते। दोनों का होना, दोनों का आना, दोनों का बोलना लिखना जरूरी है, देन सेंटेंस इज फॉर्म्ड। और एक सेंटेंस सबसे छोटा यही होता है। जैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज के फैक्ट्स की बात करें तो सबसे छोटा इंग्लिश का सेंटेंस होता है आई एम। तो आई क्या है, सब्जेक्ट, जो कि है तो प्रोनाउन, लेकिन नाउन का ही पार्ट है, क्योंकि आई का कुछ नाम तो होगा ना। अब हम सब लोग अपने लिए आई है तो हम सबके नाम है, तो इसका मतलब आई जो है वो नाउन का ही पार्ट है, बट नाउन ही है। और उसके बाद में क्या लगाया, एम। तो एम क्या है, हेल्पिंग, यानी इसका सही सेंस हुआ मैं हूं। किसी ने क्वेश्चन पूछा कौन है, आपने बोला मैं हूं, आई एम। इट इज द स्मॉलेस्ट सेंटेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज, इट इज अ फैक्ट, यू कैन सर्च इट ऑन गूगल। नाउ वी टॉक अबाउट द थर्ड पर्सन। सो थर्ड पर्सन इज नोन एज प्रोनाउन। तो दो वर्ड्स यहां पर देख रहे हैं, प्रोनाउन, सर्वनाम। तो हिंदी में अपने आप अलग सर्व, सर्व यानी ज्यादा, ठीक है, और नाम मतलब नेम। तो जब हम किसी पर्टिकुलर जो नेम है, एक पर्टिकुलर नाम दे दिया, जैसे मोहन, सीता, ठीक है, श्याम, चिड़िया, कौवा, तो इनसे लिए हमें क्या करना है कि इनकी जगह हम बदल देते हैं वाक्य में जब इनको दोबारा रिपीट किया जाता है। और वी कैन से इन अदर लैंग्वेज कि द नाउन और मींस वी कॉल दैट फादर इज गोइंग आउट ऑफ स्टेशन फॉर एनी जॉब and he gives this responsibility behind him to his elder son। तो ये कहता है कि मैं कहीं बाहर जा रहा हूं और ये अपनी जिम्मेदारी दे देता है अपने बड़े बेटे को, तो वी कॉल इट एल्डर सन। और हमारी फैमिली में भी यही होता है कि जब भी हमारे पिताजी घर पर नहीं होते हैं तो उनकी एब्सेंट में सारे डिसीजन, सारे काम बड़े बेटे के होते हैं। सो एल्डर सन टेक्स डिसीजन इन एब्सेंस ऑफ नाउन। और वी कैन से इन अदर वाइज दैट कि नाउन को हम बार बार जब एक ही सेंटेंस में किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बात करें तो बार बार जब हम उसी का नाम लेते हैं इंग्लिश में या हिंदी में तो वो बहुत ही ऑड लगता है। हम उसकी जगह पर यह, वह, हम, तुम, मैं, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसका भी एक अलग चैप्टर है। प्रोनाउन भी ये कई प्रकार के होते हैं, इनमें से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, तो इनके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। लेकिन सिर्फ आपको यहाँ पर ये समझना है कि प्रोनाउन यानी सर्वनाम, नाम तो अभी भी है लेकिन वो नाम अब किसी खास रूप में नहीं है। जैसे मोहन, अब मोहन को हमने ही का नाम दे दिया है, अब मोहन ही के रूप में जाना जाएगा। जैसे हम सब लोग बचपन में काव के बारे में जो है एक ऐसे लिखते थे तो उसमें हम लोग बार बार काव को रिपीट नहीं करते थे, हम सिर्फ एक पहली बार में सेंटेंस लिखते थे, द काउ इज अ यूजफुल एनिमल। अब जितनी बार भी हम काउ के बारे में सेंटेंस बनाएंगे तो उसकी जगह पर हम इट का प्रयोग करते हैं। हम ऐसे नहीं बोलते काउ गिव्स अस मिल्क, काउ ईट्स द ग्रास, काउ ग्रेजेस द ग्रास, काउ गोज टू फील्ड, काउ गिव्स अस काफ, काउ हैज टू हॉर्न्स, काउ हैज टू ईयर्स। सो हियर वी कैन से सेंटेंस तो करेक्ट है अपने हिसाब से, लेकिन यहाँ पर जब बार बार हम काउ काउ बोल रहे हैं तो इट लुक्स वेरी ऑड। इसकी जगह हमने किसको दे दी, इट को। अब काउ को रिफ्लेक्ट करेगा इट, तो यानी नाउन जो है वो चला गया और उसने जिम्मेदारी दे दी इट को यानी प्रोनाउन को। ऐसे ही जब मैं कहता हूं कि माय नेम इज लोकेंद्र, अब मैं बार बार ये नहीं कहूंगा कि लोकेंद्र टीचेज यू इंग्लिश लैंग्वेज, लोकेंद्र लिव्स एट नर्सी विलेज,
अब यहाँ पर मैंने लोकेंद्र तो मेरा नाम हो गया, तो वो तो नाउन है। अब लोकेंद्र की जगह किसने ले ली? आई ने। अब मैं जितना भी वाक्य बोलूंगा तो यहाँ पर मैं आई का यूज करूंगा। ऐसे ही मैं किसी आपसे किसी का नाम लेता हूं तो वो नाम सिर्फ मैं एक बार लूंगा, फिर इतनी बार भी मैं उससे बात करूंगा, जो भी मैं उससे कहूंगा नेक्स्ट टाइम, तो मैं उसकी जगह यू को दे दूंगा। तो दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। सो इट प्लेज द रोल ऑफ एल्डर सन, जैसे हम सभी की फैमिली में होता है। सेकंड, फोर्थ वन इज एडजेक्टिव, वी कॉल इट विशेषण। तो वी कॉल इट एडजेक्टिव, इसमें डी जो है वो साइलेंट रहता है। एडजेक्टिव ऐसे नहीं बोला जाएगा, एडजेक्टिव, ठीक है। डी को आपकी जो टंग है वो हल्का सा टच करेगी, सो वी कॉल इट एडजेक्टिव। इसका काम क्या है? इसको ग्रामर फैमिली में रोल दे दिया गया है यंगर सन। तो एक हमारा है बड़ा बेटा और एक है हमारा छोटा बेटा, ठीक है, तो फैमिली में होते हैं। अब ये यंगर सन क्यों है और इसका काम क्या है? तो इसका काम सिर्फ ये है कि ये अपने भाई अथवा अपने पापा की सिर्फ विशेषता बताता है, इसके पास और कोई दूसरा काम नहीं है। This adjective always talks about his elder brother or talk about his father. इनके बारे में बात करता है, बाकी कुछ नहीं करता। और ये तब तक नहीं आएगा जब तक वाक्य में इसका भाई ना हो या इसके पापा ना हो। जैसे अगर किसी से लड़ाई हो जाए तो छोटे बच्चे की लड़ाई हो जाती है तो वो यही कहता है कि मैं अपने भाई से पिटवाऊंगा, ठीक है, अपने पापा से पिटवाऊंगा। तो मतलब इसके अंदर हिम्मत नहीं है पीटने की, ये किसी से पिटवाएगा ही, ये किसी से कंप्लेन करेगा। तो कुल मिला के बात यह है कि ये बहुत ही क्लोज होता है, ये हमेशा इनके क्लोज रहता है, बस दोनों के, इसे इनसे ही मतलब है। तो ये पता कैसे चलेगा एक सेंटेंस में कि ये एडजेक्टिव है? तो इसके लिए आप जो भी नाउन और प्रोनाउन है इन दोनों के बाद में अगर हम एक क्वेश्चन यहां पर लिखें कैसा, इस कैसा का जो भी रिजल्ट आएगा वह रिजल्ट ही हमारा एडजेक्टिव है। जब हमने कोई क्वेश्चन लगाया कैसा, तो उस कैसा क्वेश्चन का जो जवाब है वही हमारा एडजेक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा ये मार्कर नया है, कैसा है? नया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नया वर्ड जो है वो एडजेक्टिव है और नया क्या है? मार्कर। और मार्कर क्या है? नाउन। आपने कहा तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो, तो कौन हो? तुम। तो तुम यहां पर कौन है? प्रोनाउन। और कौन कैसे हो तुम? अच्छे लड़के। तो अच्छा जो वर्ड है वो तुम की विशेषता बता रहा है, लड़के की नहीं बता रहा है, तुम की बता रहा है। लड़के को हटा दो, अभी क्या बचा? तुम अच्छे हो। लेकिन अगर इसमें से हमने तुम हटा दिया तो सेंटेंस में क्या बचा? अच्छे लड़के हो। लेकिन बात तो यह है कि कौन? नाउन तो है ही नहीं। तो इसका मतलब ये इसके बिना ये तो है लेकिन ये नहीं आ रहा, तो इसका यूज बेकार है। ये फिर भी ये करेगा कौन। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि सब्जेक्ट की पहचान करने के लिए आप क्या और कौन प्रश्न लगाने से जो जवाब आएगा वो आपके वाक्य में सब्जेक्ट का काम कर रहा है। कैसा सब्जेक्ट अथवा प्रोनाउन, नाउन अथवा प्रोनाउन के साथ कैसा क्वेश्चन लगाने से जो जवाब आ रहा है वो आपका एडजेक्टिव का काम कर रहा है। आपने कहा मौसम, बाहर मौसम बहुत खराब है, कैसा है? खराब। तो मौसम क्या हुआ? नाउन, और उसकी विशेषता क्या है? खराब। तो खराब यहां पर एडजेक्टिव का काम है। और हर व्यक्ति अपने आप में एडजेक्टिव होता है, तो अपने बारे में आप सोच सकते हैं आप यंग हैं, स्मार्ट हैं, टैलेंटेड हैं, एक्टिव हैं, रेडी हैं, एजुकेटेड हैं, अनॉयड हैं, सैड हैं, हैप्पी हैं, थिन हैं, स्टाउटेड हैं। ये सारे वर्ड्स हमारे बारे में बात हो रही है, तो ये सब हमारे एडजेक्टिव हैं। ये बस ध्यान देना है कि ये बस एंडरसन अथवा नाउन की विशेषता बताएगा, और तब बताएगा जब नाउन और प्रोनाउन में से कोई एक या दोनों सेंटेंस के शुरू में और इससे पहले आ रहा है वाक्य में, ठीक है। अब अगला पॉइंट है हमारा एडवर्ब। तो एडवर्ब में जैसे दो वर्ड्स हैं, एड और वर्ब, तो क्रिया और विशेषण। तो क्रिया मतलब वर्ब, और ऐड जो वर्ड है वो ऐड वर्ड यहां से ले लिया, तो ऐड मतलब विशेषण, किसी चीज को ऐड कर देना, ऐड मतलब उसकी खूबी बढ़ा देना, ब्यूटीफाई कर देना। तो क्रिया को विशेषण। अब वर्ड अपने आप ही रिफ्लेक्ट कर रहा है, विशेषण यानी विशेषता, और क्रिया माने क्या? वर्ब, तो वर्ब की विशेषता। तो इसका सिर्फ काम सिर्फ वर्ब की विशेषता ही बताने का नहीं है,
इसको पहली बात तो हम ग्रामर फैमिली में डॉटर का रूप दे देते हैं. इट इज प्लेइंग द रोल ऑफ डॉटर इन ए ग्रामर फैमिली. सो एवरी फैमिली हैज ए डॉटर. ओके, सो नाउ वी से दिस डॉटर ऑलवेज टॉक्स अबाउट इट्स मदर. यही होता है हमारी फैमिली में. ओके, और दिस डॉटर इज वेरी क्लोज टू इट्स यंगर ब्रदर. ये डॉटर जनरली not 100%, generally remain close to mother or remain close to younger brother, not to noun, not to elder brother, not to father. फादर से भी उतना क्लोज नहीं है ये, और एल्डर सन से भी नहीं है जितना ये अपने छोटे भाई से, यंगर सन से, और या फिर खासकर अपनी मदर से. तो इसकी पहचान कैसे होगी? इसकी पहचान के लिए भी हम कई सारे क्वेश्चंस लगा सकते हैं. तो ये मतलब एडवर्ब जो होती है, एडवर्ब भी बहुत प्रकार की होती है. एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ नाउन, एडवर्ब ऑफ वर्ब. तो इनके लिए कई सारे क्वेश्चंस लगाए जा सकते हैं, जैसे व्हेन, हाउ, वेयर, व्हाट. तो इन सारे क्वेश्चंस के जवाब जब आते हैं तो उसमें जो जवाब आ रहा है वो हमारा एडवर्ब है. एक तो ये हिंट है. दूसरा ये है कि एडवर्ब में ज्यादातर एलवाई वर्ड लगा होता है पीछे. जैसे स्लो वर्ब है, एडजेक्टिव है. अब स्लोली, ठीक है, सॉफ्ट, सॉफ्टली, लाउड, लाउडली, हाई, हाईली, डीप, डीपली, क्लेवर, क्लेवरली. तो ऐसे कितने सारे, लव, लवली, बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनमें आप एलवाई एक वो है, क्या बोलते हैं हम, सफिक्स. सफिक्स मतलब जो वर्ड के लास्ट में जुड़ता है और एक नया वर्ड बना देता है. तो इसको हम कह सकते हैं कि ये हमेशा या तो वर्ब की विशेषता बताएगी, और वर्ब का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मेन वर्ब की बताएगी. वर्ब का रूप तो वर्ब मतलब वर्ब में हेल्पिंग वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है. ये एक व्यक्ति की स्टेट को बताते हैं. जैसे आपने कहा आई एम हैप्पी, तो यहां पर आई क्या है, प्रोनाउन, और एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और हैप्पी क्या है, एडजेक्टिव. क्योंकि मैं खुश हूं. अब मैं खुश हूं क्योंकि यहां पर खुश जो वर्ड है वो मेरी विशेषता बता रहा है, और मैं कौन हूं वाक्य में, प्रोनाउन. लेकिन काम किसका कर रहा हूं, सब्जेक्ट का. अब यहां पर हम कह सकते हैं कि अब इसमें मैंने सेंटेंस में ऐड कर दिया आई एम वेरी हैप्पी. अब यहां पर जो वेरी वर्ड है वो मेरी विशेषता नहीं बता रहा है, वो विशेषता बता रहा है हैप्पी की, कि मैं खुश हूं कितना, बहुत. तो बहुत खुश, ठीक है. तो बहुत वर्ड जो है इसके साथ आया, तो जो वेरी वर्ड है ये भी एडजेक्टिव होता है. अब ये तो हेल्पिंग वर्ब के साथ में बता दिया हमने, क्योंकि यहां पर हेल्पिंग वर्ब आ रही है, आई एम वेरी हैप्पी. तो यहां पर हमने देखा कि जो हैप्पी वर्ड है वो किसकी विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव की. और एडजेक्टिव कौन है, यंगर सन. तो अभी हमने क्या बताया कि जो एडवर्ब है वो यंगर सन की बात करती है. यानी वो ये तो कह रहा है कि मैं खुश हूं, लेकिन ये साथ में कह रही है कि बहुत खुश. तो बहुत वर्ड यहां से आया और वो हैप्पी की विशेषता बता रही है. और हैप्पी क्या है, एडजेक्टिव. और हैप्पी किसकी विशेषता बता रहा है, नाउन की, प्रोनाउन की. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द मेन वर्ब. जैसे आपने कहा सी रन्स, वह दौड़ती है. अब इसमें क्रिया क्या है, सी कौन है, प्रोनाउन, जो कि नाउन का काम है, जो नाउन का ही पार्ट है, और सब्जेक्ट का काम कर रहा है क्योंकि वाक्य शुरू में आ रहा है, कर्ता, और क्रिया कर्ता ही एक्शन लेता है. तो सी रन्स, वह दौड़ती है. रन में हमने एस लगाया, तो अभी हम बात कर रहे थे ना वर्ब की 5 फॉर्म, तो एस फॉर्म आ गई, प्रेजेंट इंडेफिनिट. वह दौड़ती है, तायती आ रहा है. अब हमने कहा कि वह तेज दौड़ती है. तो यहां पर जो तेज वर्ड है, फास्ट, वो वह की विशेषता नहीं है. तो ये बता रही है कैसा दौड़ती है, तेज. तो तेज वर्ड दौड़ने के लिए यूज किया गया है. तो फास्ट वर्ड यहां पर वर्ब ऑफ एडवर्ब है, सॉरी क्वालिटी ऑफ वर्ब है. दैट्स व्हाई वी कॉल इट एडवर्ब, क्योंकि ये विशेषता किसकी बता रही है, मेन वर्ब की. तो हमारी जो ये एडवर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब दोनों की विशेषता बताती है. सो जनरली ये मेन वर्ब की विशेषता बताती है. तो जब भी हम बोलते हैं यू स्पीक लाउडली, तो यू क्या है, बोलता है, तुम बोलते हो कैसे, लाउडली, ऊंचा. तो बोलने की विशेषता है लाउडली. हमने कहा प्लीज स्पीक स्लोली, धीमे बोलो, तो बोलने की विशेषता बताई जा रही है स्लोली.
यू ऑलवेज कम लेट, तुम हमेशा लेट आते हो। कैसे आते हो? लेट। तो कम की विशेषता क्या बता रहा है? लेट। तो लेट एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, जो कि कम की विशेषता बता रहा है। गॉट इट? सो नाउ वी टॉक अबाउट नेक्स्ट वन इज कंजक्शन। तो जैसे वर्ड अपने आप में कह रहा है कंजक्ट यानी जोड़ना, तो हिंदी में लिखा है संयोजक यानी किसी को जोड़ना, संयोग करना। अब ये हमारी फैमिली में जो रोल है वो हमने दे दिया रिलेटिव को, रिलेटिव्स, रिश्तेदार। तो ये हम अपनी फैमिली से रिलेट कर सकते हैं कि जब भी हमारी फैमिली में कोई डिस्प्यूट होता है, कोई वाद विवाद होता है, कोई छोटी मोटी बातें हो जाती हैं, तो उस केस में हम अपने रिलेटिव्स को याद करते हैं और इनसे कहते हैं कि आओ और कुछ समाधान कराओ, समझौता कराओ। So they generally come and help us to solve the dispute. It also happens in our family generally and it also happening in grammar family. So let's see how. कंजक्शन यानी रिलेटिव का काम कर रहा है, तो ये इस बात को कहता है कि जब दो सेंटेंस अलग अलग हैं या दो वाक्य अलग अलग हैं और दोनों एक ही जगह जा रहे हैं, दोनों एक ही काम कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि भाई दोनों अलग अलग क्यों चल रहे हैं, एक ही साथ क्यों नहीं चल रहे। तो रिश्तेदार कह रहे हैं कि तुम इसके साथ जा रहे हो, तुम उसके साथ जा रहे हो, तुम क्यों ना दोनों एक साथ में जाओ। जैसे मैंने बोला यू आर गोइंग टू दिल्ली, मैंने बोला वी आर गोइंग टू दिल्ली, तो हमने कहा यू भी जा रहा है और वी भी जा रहा है, तो क्यों ना यू और वी दोनों एक साथ चलें। तो फिर हम क्या बोलेंगे? यू एंड वी। अब हमने एंड वर्ड से यू को और वी को जोड़ दिया। यू एंड वी आर गोइंग टू दिल्ली। आई एंड यू आर लर्निंग इंग्लिश। ईदर यू और आई विल गो टू दिल्ली। तो यहां पर ईदर, एंड, और, इफ, बट, बिकॉज, ये सब हमारे कंजक्शंस हैं। कंजक्शंस का ग्रामर फैमिली में दो ही काम होते हैं, ईदर इट कनेक्ट्स टू वर्ड्स और कनेक्ट टू सेंटेंसेस। या तो ये दो शब्दों को जोड़ता है या ये दो वाक्यों को जोड़ता है, बस इसका जोड़ने का काम है। जैसे हमने एक सेंटेंस बोला आई एम लर्निंग इंग्लिश बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक माई करियर इन कॉर्पोरेट सेक्टर। तो हमने यहां पर एक सेंटेंस बोला आई एम लर्निंग इंग्लिश, दूसरा सेंटेंस बोला आई वॉन्ट टू मेक माई करियर इन कॉर्पोरेट सेक्टर। अब इन दोनों सेंटेंस को हमने एक वर्ड से जोड़ दिया, बिकॉज, रीजन लगा दिया। तो बिकॉज यहां कंजक्शन का काम कर रहा है, दो वाक्यों को जोड़ रहा है। अन्यथा हमें अलग अलग बोलना पड़ेगा, आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई वॉन्ट टू मेक माई करियर इन कॉर्पोरेट सेक्टर। हमने कहा जब दो सेंटेंस अलग अलग हो गए तो क्यों ना इनका एक ही बनाया जाए। तो एक बनाने का मतलब है कि अब उसमें से हम बिकॉज लगा करके जोड़ देंगे और एक से फुल स्टॉप हटा देंगे, पूरा लिख करके उसके बाद फुल स्टॉप लगाएंगे। तो अब मैं बोल रहा हूं आई एम लर्निंग इंग्लिश बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक माई करियर इन कॉर्पोरेट सेक्टर। अब मैंने फुल स्टॉप लगाया। पहले दो वाक्य थे, उनका एक बना दिया। पहले दो फैमिली थी सेपरेट, उनको हमने ज्वाइंट फैमिली कर दिया। तो ज्वाइंट फैमिली कर दिया तो सपोर्ट मिल गई, बोलने में आसानी हुई, टाइम कम लगा, स्पेस कम लिया, लिखने में जो आपका पेपर बचा। सो वी हैव बेनिफिट्स ऑफ दिस पार्ट ऑफ स्पीच। We can call conjunction is known as relative in grammar family. It always connects to words or we can say to sentences. Next we talk about preposition. तो preposition ये बहुत खतरनाक होता है। प्री सभी जानते हैं, प्री यानी पहले, प्रीपेड, प्रीपेमेंट, प्री वर्क, प्री वेडिंग वर्ड होता है ना, मतलब शादी से पहले, ठीक है। प्रीपेड मोबाइल यानी कि पहले रिचार्ज करो उसके बाद में टॉक टाइम मिलेगा। और पोजीशन मतलब क्या होता है? स्थिति, किसी भी चीज की स्थिति। तो किसकी स्थिति? नाउन की स्थिति। ये तो हम जानते हैं ना कि सेंटेंस में नाउन या तो वाक्य शुरू में आ रहा है एज सब्जेक्ट या नाउन वाक्य अंत में आ रहा है एज ऑब्जेक्ट। तो अब हमारा जो नाउन है वो सेंटेंस के शुरू में आ रहा है या ऑब्जेक्ट एज ए लास्ट में आ रहा है। तो दो छोड़ हो गए एक वाक्य के, एक शुरुआत करने वाला सब्जेक्ट, एक अंत करने वाला दैट इज एन ऑब्जेक्ट। तो ये प्रीपोजिशंस कहता है कि ये जो दो बिंदु हैं सब्जेक्ट सेंटेंस के, बिगिनिंग और लास्ट, इन दोनों के बीच में मैं संबंध स्थापित करता हूं, इसका इसके साथ में संबंध बताता हूं। मेरा काम है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के साथ संबंध को स्थापित करना, रिलेशन को इंडिकेट करना। We may call it another word like preposition. Position मतलब noun, object
और प्री मतलब पहले। तो जो ऑब्जेक्ट से पहले आ रहा है और सब्जेक्ट के साथ उसका संबंध दिखा रहा है, उसी को प्रीपोजिशन कहा जाता है। प्रीपोजिशन इज ए वर्ड which comes before a noun or pronoun in a sentence or before an object in a sentence and establishes the relationship between with other subject or with other pronoun or with a subject in a sentence. How can we come to know about it? We have so many prepositions which are used frequently to establish relation between subject and object. तो जैसे हमने एक वर्ड लिया इन, तो इन हमेशा मैं के लिए लगता है, लेकिन इसके कई सारे सेंस होते हैं। इनका मतलब मंथ के लिए भी लगेगा, इनका प्लेस के लिए भी लगेगा, इन किसी मेड इन के साथ में भी लगता है, ऑन। तो जैसे प्रीपोजिशन बदलता है वैसे ही वह ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदल देता है। ये ऐसा नहीं कि खुद बदल रहा है, उसकी पोजीशन भी बदलेगी। एक जगह आप उसी कंडीशन के लिए लगा रहे हैं एट, एक जगह लगा रहे हैं इन। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल, ठीक है, तो यहां पर हमने टू लगा दिया, तो हॉस्पिटल क्या हुआ ऑब्जेक्ट और आई कौन हुआ सब्जेक्ट। तो आई का ऑब्जेक्ट यानी हॉस्पिटल के साथ संबंध बताया जा रहा है क्या, टू। वो कह रहा है कि उधर जा रहा है, डायरेक्शंस इंडिकेट कर रहा है इधर जा रहा है। अब मैंने यहां से टू हटा दिया और फ्रॉम लगा दिया, पूरा सेंटेंस सेम। अब आ रहा है आई एम गोइंग फ्रॉम हॉस्पिटल। अब ये इस बात को नहीं बता रहा है कि मैं हॉस्पिटल जा रहा हूं, इसका मतलब ये हो गया, देखिए सिचुएशंस कैसे चेंज हुई। अभी तो मैं घर पर हूं और हॉस्पिटल जा रहा हूं, गोइंग टू हॉस्पिटल। अब क्या कह रहा है आई एम गोइंग फ्रॉम हॉस्पिटल, ये इस बात का इंडिकेशन दे रहा है कि मैं ऑलरेडी हॉस्पिटल में हूं और अब हॉस्पिटल से जा रहा हूं। अब फ्रॉम लगते ही से हो गया। हम एक वर्ड यूज करते हैं मेड इन, एक हम कहते हैं मेड ऑफ, एक हम कहते हैं मेड फ्रॉम। तो एक ही वर्ड है मेड क्रिया, उसके साथ में तीन प्रीपोजिशंस लग रहे हैं, तो इसका मतलब है कि तीनों सेंस अलग अलग सेंस में यूज किए जाएंगे। मेड इन तब लगेगा जब किसी जगह के लिए आप यूज कर रहे हैं, जैसे मेड इन इंडिया, मेड इन जापान, मेड इन चाइना, मेड इन जर्मन, ठीक है। मेड ऑफ का भी प्रयोग ऐसे ही होता है किसी चीज को जब किसी दूसरी धातु से बनाते हैं। मेड फ्रॉम का भी प्रयोग दूसरी धातु के लिए लगाते हैं, लेकिन एक केस में रूप और रंग साइज सब परिवर्तित हो जाता है, एक में परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन चीजें वही रहती हैं। सो वी विल टॉक अबाउट दी प्रीपोजिशंस लेटर इन डिटेल। अब इसका दूसरा सेंस समझ लेते हैं कि अभी मैंने कहा आई एम अंडर द रूफ, अंडर द सीलिंग, क्योंकि अंदर की छत को सीलिंग कहा जाएगा नीचे की साइड से, तो मैं यहां इसका मतलब छत के नीचे हूं। अब मैंने बोल दिया कि आई एम ऑन द रूफ, अब मैंने अंडर की जगह पर ऑन लगा दिया, इसका मतलब मैं पोजीशंस ऊपर हो गई। तो अब मेरी पोजीशंस ऊपर आ गई और पहले मेरी पोजीशंस नीचे थी। तो जैसे प्रीपोजिशन बदल रहा है वैसे ही हमारा पोजीशन भी बदल जाता है सब्जेक्ट का। एक सेंटेंस हम और लेते हैं, आई एम इन हॉस्पिटल और आई एम एट हॉस्पिटल। दोनों में सिर्फ एक इनका और एट का अंतर है और कोई अंतर नहीं है, लेकिन बात यह है कि इसके सेंस बहुत अलग है दोनों के। इन हॉस्पिटल कब लगाना है, जब आप स्वयं हॉस्पिटल में अपनी बीमारी के इलाज के लिए एडमिट है और आप अस्पताल में हैं। और एट हॉस्पिटल कब लगाना है, जब आप किसी व्यक्ति से मिलने के लिए गए हॉस्पिटल में, आप किसी से कोई बिजनेस पर्पज के लिए गए हॉस्पिटल में, आप हॉस्पिटल में जनरली एक विजिट करने के लिए चले गए, किसी का फोन आया वेयर आर यू, आपने कहा आई एम एट हॉस्पिटल, इट मींस यू आर नॉट एडमिट इन हॉस्पिटल, you have come in hospital to visit with someone or to general visit। और जब आपने पूछा किसी से बोल दिया कि आई एम इन हॉस्पिटल, अब सामने वाला व्यक्ति समझेगा कि यू आर एडमिट इन हॉस्पिटल, यू हैव एनी काइंड ऑफ डिसीज। तो देखिए एक ही वर्ड का कितना बड़ा रोल है। अब हमें अगर इसका ज्ञान नहीं हुआ तो हम कहना तो चाह रहे हैं कि हम जनरली हॉस्पिटल आए, आई एम एट हॉस्पिटल, और सामने वाले की इंग्लिश अच्छी है, बोल दिया हमने उसको आई एम इन हॉस्पिटल, तो ही विल रिफ्लेक्ट कि यू आर एडमिट इन हॉस्पिटल विद एनी डिसीज। तो वो पूछेगा अरे क्या हुआ, क्यों हॉस्पिटल में, अरे कुछ नहीं बस ऐसे ही आया हूं। तो कंफ्यूजन, देयर विल बी कंफ्यूजन इन द माइंड, इसलिए कंफ्यूजन पैदा करता है ये बहुत सारे होते हैं। इनका एक एक प्रीपोजिशंस के कई कई सारे यूज होते हैं, कई कई सारे नियम होते हैं। एट का प्रयोग स्पीड के लिए भी लगाते हैं, दर के लिए भी लगाते हैं, कीमत के लिए भी लगाते हैं, चाल के लिए भी लगाते हैं, किसी छोटे स्थान से पहले भी लगाते हैं, एज के लिए भी लगाते हैं, किसी सब्जेक्ट में स्ट्रांग होने के लिए भी लगाते हैं, किसी जगह के आसपास होने के लिए भी लगाते हैं। सो मेनी यूज
लेकिन अब एट वर्ड है, इतनी जगह यूज हो रहा है, कैसे ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर एट लगेगा या इन लगेगा या ऑन लगेगा? ये सब प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस में आते हैं। तो प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस होता है, प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम होता है, प्रीपोजिशंस ऑफ सिचुएशंस होता है, कई प्रकार के होते हैं। ग्रामर फैमिली में इसको बहुत ही खतरनाक रोल मिला है। इसको ग्रामर फैमिली में रोल मिला है सन इन लॉ। सब जानते हैं कि ये व्यक्ति बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि ये एक ऐसा व्यक्ति है, ये पता चले कि साले की शादी है तभी नाराज हो गया, तो सबसे पहले तो इसी को ही मनाना है, नहीं तो माइंड का काम कौन करेगा? आगे की प्रक्रिया कैसे पूरी होंगी? इसके बिना आधे सगुन के काम पेंडिंग पड़े रहेंगे। तो ये सन इन लॉ क्यों कहा गया है? क्योंकि सन इन लॉ का काम क्या है? हमारी फैमिली में दो परिवारों को जोड़ना। भाई हम किसी व्यक्ति को तभी तो मेहमान बनाया है, तभी तो उसको सम्मान देंगे। हर किसी व्यक्ति को थोड़े ही मेहमान बना लेंगे। तो उस केस में क्या है, ये दो चीजों को जोड़ रहा है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, इन दो फैमिलियों को जोड़ने का काम कर रहा है। और ये कहता है कि थोड़ी भी गड़बड़ हो गई तो पूरा अर्थ का अनर्थ, सब गड़बड़। इनकी जगह एट लगा दिया, सामने वाला समझेगा कि हॉस्पिटल में नॉर्मली आए, ये तो एडमिट है, सेंटेंस का मीनिंग गलत। कहना तो चाह रहे हो मैं हॉस्पिटल जा रहा हूं, घर जा रहा हूं, टू की जगह पर लगा दिया फ्रॉम, वो समझेगा घर से जा रहा है। सो देयर इज अ कंफ्यूजन। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट भी बहुत है, क्योंकि ये एक सेकंड में पोजीशन बदल देता है। ये कह सकते हैं कि ये कब नाराज है, कब खुश है, कब मॉडरेट है, कोई नहीं पता। तो इसको बहुत ही खुश रखना है। इसको खुश रखने के लिए मतलब ये है कि इसके बारे में डिटेल में बात करनी है, इसको अच्छे से समझना है, इसका प्रॉपर यूज करना है। अदरवाइज इट्स ए सिंगल मिस्टेक कैन चेंज द मीनिंग ऑफ ए सेंटेंस। ओके, सो इट इज अ सन इन लॉ एंड प्रीपोजिशंस, यानी कि नाउन से पहले हमेशा आएगा, नाउन से पहले ही, नाउन से आए या ऑब्जेक्ट से पहले ही आएगा। प्री वर्ड लगे ना, प्रीपोजिशन, पोजिशन यानी नाउन और उससे जस्ट पहले, और दूसरे के साथ उसका संबंध बताता है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इंटरजेक्शन। ये बहुत बढ़िया आदमी है, ठीक है, इसको कहा गया है नेबर, पड़ोसी। ठीक है, अब पड़ोसी क्यों है? दो सेंस में समझ लेते हैं पड़ोसी क्यों है। पहला तो इसको हम हिंदी में कहते हैं विस्मय बोधक शब्द, क्योंकि ये सब शब्द है, सेंटेंस नहीं है। नाउन क्या है? शब्द होता है, राम, मोहन, सब इंग्लिश के वर्ड है। क्रिया क्या है? शब्द है, स्पीक, गो, कम, टॉक, सब वर्ड है। एडजेक्टिव प्रोनाउन क्या है? यू, वी, दे, शब्द है इंग्लिश का। तो ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द हैं, शब्दों से ही मिलकर तो वाक्य बनता है। और वाक्य भी हमारे कई प्रकार के होते हैं। तो एक जगह पर हम ये साइन लगाते हैं, वहां पर इंटरजेक्शन साइन जब लगता है तो वह वाक्य बन जाता है, तो उसको कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और एक जगह पर ये वर्ड का काम करता है। वर्ड मतलब एक शब्द। पड़ोसी क्यों कहा गया है? पड़ोसी कहां रहते हैं? पड़ोस में, हमसे पहले, हमारे बगल में। और किस काम आते हैं? हमारे सुख में काम आते हैं, दुख में काम आते हैं। हमारे साथ, हम दुखी हैं तो हमारे साथ दुख को बांटते हैं, हम खुश हैं तो हमारी खुशी को बांटते हैं। तो इसका काम ये है कि ये सेंटेंस के कभी भी बीच में नहीं आता है। ये सारी चीजें वो हैं जो सब्जेक्ट से शुरू होती हैं और ऑब्जेक्ट पर खत्म होती हैं। कुल मिला के एक सेंटेंस हमने लिया ना, सेंटेंस। अब ये जो सेंटेंस है, ये इसका बिगिनिंग पॉइंट है एज ए सब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट यानी कि लास्ट पॉइंट। तो प्रीपोजिशन है वो यहां आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब है वो यहां आ रही है, ठीक है। इसमें और भी कोई एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, वो भी यहां आ रहा है। लेकिन प्रीपोजिशन, ये कंजक्शन जो है, ये कभी भी इसके बीच में नहीं आता है, क्योंकि ये पड़ोसी है। तो पड़ोसी परिवार में थोड़े ही आएगा, पड़ोसी तो पड़ोस में ही रहेगा। तो पड़ोसी है, हमेशा वो यहां आता है। तो इंटरजेक्शन एक वर्ड है जिसको हम जानते हैं कि सेंटेंस के शुरू होने से पहले एक शब्द जो आ रहा है और उसको सेंटेंस की पूरी फीलिंग दे रहा है, उसी को इंटरजेक्शन कहा गया है। ये सेंटेंस का पड़ोसी है, ये हमारी फैमिली में हमारा पड़ोसी है। जब हमारे परिवार में कोई विपत्ति आ जाती है तो हमारे पड़ोसी आते हैं, मदद करते हैं। और हमारे परिवार में जब कोई काम आ जाता है तो ये आते हैं, मदद करते हैं। और हम जब खुश हो रहे हैं तो ये भी हमारे साथ खुश हो रहे हैं। तो इसको इसलिए इंटरजेक्शन कहा गया है क्योंकि यहां पर ये पहले आएगा और इसके आने से ये पता चल जाएगा कि सेंटेंस में क्या फीलिंग दी जा रही है। ये वर्ड होते हैं वर्ड ऑफ योर फीलिंग्स। वर्ड ऑफ फीलिंग्स मतलब
फीलिंग सुख की है, दुख की है, आश्चर्य की है, शर्म की है, डिस्गस्टिंग है, दुखद है। अब जैसे कोई दुखद बात है तो हम क्या बोलेंगे, ओ माई गॉड, इट्स सो ब्लंडर, इट्स ए सो बिग मिस्टेक, ही हैज कमिटेड सुसाइड। अब हमने ओ माई गॉड वर्ड पहले बोला, जैसे ही हमने एक दुख के साथ बोला ओ माई गॉड, वैसे ही हम समझ गए आगे कोई दुख की बात हो रही है। ऐसे ही आपने कहा अलास, इंडिया लॉस्ट द मैच बिफोर 2 days, तो ये क्या दुख है ना, तो दुख है तो अलास वर्ड यूज करेंगे। अब ऐसे थोड़ी है कि हुर्रे इंडिया लॉस्ट द मैच, वी कांट स्पीक लाइक दैट कि मुझे खुशी हो रही है इंडिया मैच हार गई। नो, पड़ोसी दुखी है क्योंकि सेंटेंस में कुछ गड़बड़ हुआ, फैमिली में कोई घटना हो गई, तो वो भी दुखी है और दुख की फीलिंग आ रही है। इसको फीलिंग के अनुसार हमेशा यूज करना है। जब भी आपने किसी चीज को देख के सरप्राइज है तो आप बोलेंगे वाओ इट इज सो नाइस। तो वाओ वर्ड जैसे ही आपने बोला आपको यह पता चल गया कि सेंटेंस में कोई सरप्राइज है। वाओ इट इज माई न्यू कार, यू आर वेरी हैप्पी टू सी इट, समवन हैज गिफ्टेड यू ए न्यू कार, वाओ, इट कम्स ऑटोमेटिकली फ्रॉम योर माउथ। सो इट शोज दैट कि हमेशा पड़ोसी का जो काम है ये वैसा ही रोल करेगा जैसा सेंटेंस में फीलिंग दी गई है। ये ऐसा नहीं कर सकता कि पड़ोसी के घर में कोई एक्सपायर हो गया और मैं खुश रहूं। ये अंदर से चाहे कैसा भी है लेकिन उस समय सिचुएशनली ही बिहेव्स लाइक द सिचुएशन। तो ये जितने भी वर्ड्स हम सेंटेंस से पहले कई बार दिन भर बोलते हैं, जैसे ओ, अलास, हु, ओ माय गॉड, ओ शिट, वाओ, वंडरफुल, वेल, ब्रेवो, अलास, हुर्रे, हु, ओ शिट, ये सारे वर्ड्स पहले बोले जाते हैं और उसके आगे फिर सेंटेंस लिखा जाता है। तो ये सेंटेंस का पड़ोसी हुआ। पहले फीलिंग दिया जा रहा है, फिर उसी हिसाब से जैसे हमने फीलिंग दी उसी हिसाब से हम सेंटेंस बोलेंगे। ओ शिट आई लॉस्ट माई मोबाइल समवेयर, धत्तेरेगी। ओ शिट मीन्स धत्तेरेगी। अब ये धत्तेरेगी कब बोलेंगे, जब मोबाइल खो गया। अब ऐसे थोड़ी बोलेंगे धत्तेरेगी मेरा मोबाइल खो गया, अब तो नया मोबाइल दिलवाएंगे घर वाले, एप्पल का मिलेगा, अब तो सीधे somehow चाहे मिले लेकिन somehow you internally feel the pain or means like you have lost something, so you are somehow regretting, आप पछता रहे हो, आपको दुख हो रहा है इस बात का। So जब आपने बोला oh shit I have lost my mobile, तो जब आपने oh shit वर्ड बोला तो आपने जो सेंटेंस बोलना है I have lost my mobile somewhere, तो आपके चेहरे का एक्सप्रेशन भी ऐसा होना चाहिए कि you really feeling और मिसिंग योर मोबाइल विच यू हैव लॉस्ट समवेयर, आपको उसका दुख हुआ है। ऐसा ना हो ओ शिट आई लॉस्ट माय मोबाइल टुडे, सो चेहरे पर स्माइल आ रही है और बोल रहे हो ओ शिट आई हैव लॉस्ट माय मोबाइल टुडे। तो एक्सप्रेशंस के साथ में इस वर्ड को हमें यूज करना है, टू बी इंपॉर्टेंट। ये कब काम आएगा, जब इंग्लिश आप बोलते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है, क्योंकि आदमी सामने वाला इसके वर्ड के एक्सप्रेशन से आपके मैसेज को वो पहचानता है कि इसके शब्द क्या है और इसके शब्द इसके चेहरे से मैच कर रहा है कि नहीं। साइकोलॉजिकल जो होते हैं वो यही काम तो करते हैं। वो झूठ कैसे पकड़ते हैं कि आदमी झूठ बोल रहा है कि नहीं, वो देख लेता है कि इसके शब्द इसके चेहरे से मैच कर रहा है कि नहीं, वो पकड़ लेते हैं कि ये इज अ टेलिंग लाई और नॉट। तो ऐसे ही हमें यहाँ पर इस वर्ड के साथ में ये मैच करना है, जैसा हम वर्ड दे रहे हैं वैसा ही हमें सेंटेंस बोलना है, या जैसा भी हमारे अंदर की फीलिंग है जो हम सेंटेंस कहना चाह रहे हैं तो उसी के हिसाब से हमें अपने इंटरजेक्शन वर्ड का चुनाव करना है और उसको पहले लाना है, बोलना है। और एक चीज और, बोलते समय तो आपको उस वर्ड को बोलने के बाद में ब्रेक लेना है 1 सेकेंड का, तब सेंटेंस आगे बोलना है। लेकिन लिखते समय आप हमेशा इंटरजेक्शन साइन, इसको चिन्ह बोला जाता है, तो साइन भी तो होते हैं कई सारे, इंग्लिश में पढ़ते हैं पंक्चुएशंस, जिसमें फुल स्टॉप, इंटरजेक्शन साइन, क्वेश्चन मार्क, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, हाइफन, तो इन सब का भी लेक्चर होता है। ये लिखने में ज्यादा यूज होते हैं। पंक्चुएशंस का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट राइटिंग इंग्लिश में किया जाता है, मेल राइटिंग, ऐसे राइटिंग, ईमेल राइटिंग, प्रोफेशनल राइटिंग, सो इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर हम पंक्चुएशंस का यूज ना करें तो सेंटेंस का भी अर्थ बदल जाएगा। जहां पर फुल स्टॉप लगाना चाहिए वहां नहीं लगाया और उसके आधा सेंटेंस दूसरे का ले लिया, वहां लगा दिया बीच में, तो पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इज दिस नेबर। एंड लास्ट वी टॉक अबाउट, दिस इज अ न्यू वन इन ग्रामर फैमिली, दिस इज न्यू वन इन ट्रेडिशनल फैमिली देयर आर ओनली दीज 8 पीपल, but now in modern English grammar family, or we can say that in
एडवांस्ड इंग्लिश ग्रामर देयर इज वन मोर मेंबर, वी कॉल इट डिटरमिनर। तो जैसे वर्ड अपने आप में इंडिकेट कर रहा है निर्धारक शब्द, निर्धारक यानी निर्धारित करने वाला, निर्धारित मतलब डिसाइड करने वाला। तो इसको फैमिली में हमने यहां पर सर्वेंट का रोल दे दिया है, नौकर। अब ये नौकर ही है जो बड़े बड़े परिवारों में रहता है और यही डिसाइड करता है ये कपड़े किसके, ये कमरा किसका है, बाबूजी की गाड़ी साफ हुई कि नहीं, बाबूजी की कार रेडी है कि नहीं, ये लंच ब्रेकफास्ट किसका तैयार हो गया। ये मतलब इंडिकेट करता है। ये दो तीन रूप में आता है। पहला तो आर्टिकल इसके अंतर्गत आता है। आर्टिकल इज द पार्ट ऑफ डिटरमिनर, डिटरमिनर इज नॉट द पार्ट ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल जो ग्रामर का चैप्टर जो होता है वो डिटरमिनर का ही पार्ट है, इसके अंदर आर्टिकल आते हैं। इसकी तरफ इसमें इंडिकेटिव वर्ड्स भी आते हैं जब इशारा करते हैं, दिस चेयर, दैट बॉय, दीज स्टूडेंट्स, दोज प्लेयर। तो दिस, दैट, दीज, दोज, ए एंड द, मैनी क्वांटिफायर्स होते हैं, मैनी, मोर, मच, लिटिल, फ्यू और सच, ये सारे वर्ड्स। और इसके साथ में वो भी आता है पॉजिटिव प्रोनाउन, जैसे माई कार, तो कार को इशारा किया, मेरी कार, निर्धारित किया। नौकर बता रहा है इट इज जो है ये मालिक की कार है, इट इज माई मास्टर्स कार, तो मास्टर में अपोस्ट्रोफ लगाया। तो यहां पर ये डिटरमिनर का काम होता है किसी चीज को निर्धारित करके बताना कौन का क्या है। ये आता कब है, ये भी हमेशा नाउन से पहले ही आता है। इट ऑलवेज comes all before the noun। ध्यान रखें, जब ऐसे मैंने एक सेंटेंस बोला दिस इज ए चेयर, यहां पर दिस हमारा डिटरमिनर नहीं है। क्यों, यहां दिस के बाद में हेल्पिंग वर्ब इज लग रहा है, यहां पर दिस हमारा सब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्योंकि दिस के बाद क्या लग रहा है, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। कहां आती है, सब्जेक्ट के बाद। और जब मैंने बोला दिस चेयर इज माइन, अब दिस के बाद क्या लग रहा है, चेयर। अब दिस के बाद चेयर लग रहा है तो अब इशारा कर रहे हो यह कुर्सी, तो अब ये हमारा डिटरमिनर हो गया। आपने कहा दैट इज माई फ्रेंड, अब यहां नहीं है, लेकिन आपने बोला दैट बॉय इज माई फ्रेंड, अब यहां पर ये डिटरमिनर है। तो डिटरमिनर्स का और आर्टिकल का भी एक चैप्टर है जिसमें हम आर्टिकल सीखते हैं कि कहां पर ए लगेगा, कहां एन लगेगा, दोनों इंडेफिनिट है, कहां पर दा लगेगा, कहां दा को दा बोला जाएगा, कहां दा को दी बोला जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्रामर फैमिली। अब हम कुछ भी सेंटेंस लिखें, बोलें, तो उनसे हम आसानी से समझ सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं यहां पर कुछ भी लिखता हूं, आई एम लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम शार्प इंग्लिश एकेडमी। अब एक सेंटेंस है, इसका मैसेज तो हमें क्लियर हो गया, सबको पता है कि इसका सेंस क्या है। लेकिन अगर हम बात करेंगे इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, बताइए। तो आई हम जानते हैं, आई यानी मैं, तो तुरंत हमें पता चलेगा प्रोनाउन। इसके साथ में क्या लग रहा है, एम, तो हम जानते हैं हेल्पिंग वर्ब है, इसका मतलब वर्ब का पार्ट है। लर्निंग मेन वर्ब का पार्ट है, आईएनजी लग रहा है, ठीक है। इंग्लिश अगेन नाउन, लैंग्वेज का नाम है, नाम हो गया तो नाउन हो गया ना। फ्रॉम प्रीपोजिशन, अब प्रीपोजिशन है तो ये तो कंफर्म है कि इसके बाद जो आने वाला है वो भी नाउन ही है। तो ये क्या है, शार्प इंग्लिश एकेडमी। शार्प इंग्लिश एकेडमी कोई इंस्टीट्यूट है, कोई जगह है, उसका नाम है। नाम है तो नाउन है। तो इस वाक्य के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि यहां पर दो नाउन है, एक प्रीपोजिशन है, एक मेन वर्ब है, एक हेल्पिंग वर्ब है, एक प्रोनाउन है। एक सेंटेंस हमने और लिया, यू आर टीचिंग वेरी वेल। अब यू क्या है, प्रोनाउन। अब यू के साथ है कि हमने आर लगा दिया, अगेन हेल्पिंग वर्ब। टीचिंग अगेन मेन वर्ब। वेरी वेल, तुम बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ये जो है हमारा वेरी वेल एडवर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि टीचिंग की विशेषता बता रहा है, कैसा पढ़ा रहे हो, बहुत अच्छा। तो अच्छा इसकी विशेषता बताया जा रहा है, तो ये एडवर्ब का काम कर रहे हैं। ऐसे ही आपने और कोई एग्जांपल लिया तो देखिए इसमें हमारा नाउन आ गया, प्रीपोजिशन आ गया, प्रोनाउन आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, मेन वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। अब हम बात करें राम एंड मोहन बोथ आर
बेस्ट फ्रेंड। राम और मोहन दोनों ही बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो राम है वो भी नाउन है, एक व्यक्ति का नाम, और मोहन है वो भी नाम है। तो लेकिन हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो एंड वर्ड, यानी कि जो हमने ये ग्रामर में एंड वर्ड जो लिखा, ये एंड क्या कर रहा है, राम को और मोहन को जोड़ रहा है। और जोड़ने वाला क्या होता है, कंजंक्शन। अब ये जोड़ दिया तो भाई एक और एक कितने हो गए, दो, और दो हो गए तो प्लूरल हो गया, प्लूरल हो गया तो प्लूरल वर्ब आएगी। अगर यहाँ पर सिर्फ राम आता तो नहीं आता, तो हमने कहा राम एंड मोहन दोनों, बोथ मींस दोनों, आर। अब यहाँ पर हमने आर लगाया। ऐसा नहीं है कि एक नाम आ रहा है तो इसलिए ये लगा देंगे, नहीं लगाएंगे। अगर हम बोलते हैं कि राम मोहन का दोस्त है, तो राम है मोहन का दोस्त, तो राम हुआ सब्जेक्ट, मोहन हुआ ऑब्जेक्ट, तो फिर हम इज लगाते हैं। राम इज मोहन्स फ्रेंड, राम इज फ्रेंड ऑफ मोहन, ऐसे बनेगा। फिर अब कह रहे हैं कि दोनों दोस्त हैं, लेकिन कैसे दोस्त हैं, दोस्त कैसे हैं, बेस्ट। तो बेस्ट किसकी विशेषता बता रहा है, फ्रेंड की। और फ्रेंड क्या है, नाउन। नाउन की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव, तो इट इज अगेन एडजेक्टिव। आपने कहा आई एम फाइन, समटाइम पीपल आस्क हाउ आर यू, आपने कहा आई एम गुड, आई एम फाइन, थैंक यू। तो आई एम फाइन, आई एम गुड, आई एम वेल, आई एम क्विट वेल, इन सबका मतलब क्या, मैं अच्छा हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं बढ़िया हूं, मैं ठीक हूं। अब ये सारे वर्ड्स अपने बारे में बता रहे हैं, मतलब मैं कैसा हूं, बढ़िया, मैं ठीक हूं। तो ये सब क्या बता रहा है, एडजेक्टिव। कोई और सेंटेंस आपने लिया, जैसे इंटरजेक्शन का आपने लिया, आपने कहा वाओ इट इज अ न्यू कार। लास्ट में तो फुल स्टॉप ही लगाना है, क्योंकि ये इंटरजेक्शन वर्ड आ रहा है, या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस होता तो ये सेंटेंस व्हाट अथवा हाउ से शुरू होता, एक्सक्लेमेशन करता, वो टाइप्स ऑफ सेंटेंस में आएगा आगे। तो अब हमने यहाँ पर देखा वाह, कोई व्यक्ति ने देखा, अरे वाह क्या बात है, नई कार। तो वाह वर्ड जैसे हमारे मुंह से निकला, तो इसका मतलब है कि आगे कोई खुशी की चीज या कोई सरप्राइज की चीज बता रहे हैं। तो जैसे हमने बोला वाह, तो सेंटेंस का मतलब समझ में आ गया कि आगे कोई हम सरप्राइज की या खुशी की बात कर रहे हैं। तो हमने बोला इट इज अ न्यू कार। तो इट यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन, कार के लिए यूज किया जा रहा है, ठीक है, प्रोनाउन है। इसको वो ना समझे डिटरमिनर, क्योंकि डिटरमिनर होता तो इसके बाद में नाउन आता, इसके बाद क्या लग रहा है, हेल्पिंग वर्ब। ये ध्यान रखें, दिस दैट दीज दोज सच मैनी लिटिल, इनके बाद में अगर नाउन आया तो ये काम करेंगे आपका डिटरमिनर का, और इनके बाद में अगर हेल्पिंग वर्ब आई या मेन वर्ब आई तो ये काम करेंगे आपके प्रोनाउन का। ये ध्यान रखना है, ठीक है। सो नाउ वी हैव लर्न्ड द यूज ऑफ ग्रामर फैमिली। होप दैट वाज ए मेमोरेबल एंड गुड लेक्चर। सो वी हैव टू डू नथिंग, वी हैव टू सी आवर ऑल द फैमिली मेंबर्स व्हेन वी रीच टू होम। तो हम जब घर पर जाएंगे, पापा को देखेंगे तो वो हमें नाउन नजर आना चाहिए, मम्मी को देखेंगे तो वो वर्ब नजर आनी चाहिए, ठीक है। हम बड़े हैं तो हम अपने आप में एडजेक्टिव प्रोनाउन हो गए। हमारा छोटा भाई है तो वो हमसे बोलेंगे कि एडजेक्टिव, उसको प्यार करेंगे आज के बाद, क्योंकि वो हमारी विशेषता बता रहे हैं, लेकिन आज तक हम उसे पीट रहे हैं, ठीक है, धमका रहे हैं। और जो डॉटर है उसको मम्मी के और क्लोज जानना है, और अपने छोटे भाई से भी अब और संबंध बनाना है, क्योंकि यही है जो उसकी मदद करेगा हर काम में, बड़े नहीं करेंगे, ठीक है। प्रीपोजिशंस है। अब ये बहुत ही खतरनाक आदमी है, तो इससे आज से ही जो है राम राम नमस्ते शुरू कर दीजिए, इसके साथ में कांटेक्ट में आ जाइए, इसके बिल्कुल रिलेशनशिप में आ जाइए, नहीं तो ये आपके लिए बहुत ही गड़बड़ कर सकता है। और पड़ोसियों से भी अपने से जो है अच्छा तालमेल बिठा लीजिए, क्योंकि वही है जो आपके सुख में सुखी होंगे, दुख में दुखी होंगे, नहीं तो वो यही कहेंगे कि मस्ती राम मस्ती में और आग लगे बस्ती में, ठीक है। तो मतलब इनको जाने दो, हमें कोई मतलब नहीं है। इसलिए पड़ोसियों से भी हमें बन के रहना है, और रिश्तेदारों से तो खास बन करके रहना है, क्योंकि जब भी कभी कोई बात होगी तभी नाना मामा फूफा जीजा ये तभी याद आते हैं कि घर में झगड़ा हो गया, जल्दी आ जाओ, ठीक है। भैया की शादी हुई, अब भैया कह रहा है कि मैं तो सेपरेट फैमिली में रहूंगा, अब शादी होती सेपरेट फैमिली में रह रहा है, तो रिश्तेदारों को बुलाते हैं कि इसको समझाओ, अभी नई नई शादी हुई है, कुछ समय साथ में रहने, अभी जॉइंट में ना हो, क्योंकि जो घर में दहेज का सामान आया उसको सब यूटिलाइज करें। अब वो अलग क्यों हो रहा है, वो इसलिए अलग हो रहा है कि मेरा फ्रिज, मेरी वॉशिंग मशीन, मेरा बेडरूम, मेरी कार, अब पूरी फैमिली यूटिलाइज करेगी, इसलिए वो अलग जाता है। लेकिन उसको हमें फैमिली से जोड़ना है।
तो इस प्रकार से इस ग्रामर फैमिली को अच्छे से याद रख सकते हैं. होप द लेक्चर वाज वेरी गुडफुल टू यू एंड यू विल नॉट मिस और फॉरगेट दीज पार्ट्स ऑफ स्पीच इन योर लाइफ नाउ. तो इनका रोल तो समझ में आ गया. नाउ वी विल कंटिन्यू, we will be learning about the importance and use rules and their use in a sentence accordingly in our next grammar lectures. Okay, so thank you for watching.